बिल्कुल। हम हिंदू आध्यात्मिक सेवा के लिए आए हैं और ये यहाँ पे ये म्यूजिक ग्राउंड मिलता है। यहाँ पे 108 दीवान है, की एम्बुलेंस से फायर फाइटिंग सेवा अंदर जाके देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो 50 થી વધુ સ્ટોલની સાથે સાથે શ્રી શત્રુઘ્ન મંડપમાં ઇન્દ્રોની પ્રદર્શની છે. 8 વાગે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. સેવા મેળામાં યાતાયાત દ્વારા બાલજી નવજીભાઈ ઝડપથી કાર્યાલય પર પહોંચે. રોજ રાત્રે 8 વાગે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ યોજાય છે. સેવા મેળામાં નિઃશુલ્ક આ નિમિત્તે ભૂમિકા બતાવવામાં આવે છે. સર્વેયા 3 लोग સાત્વિક નાસ્તા પણ ઉપલબ્ધ છે. શ્રી શત્રુઘ્ન મંડપમાં ઇસરોની પ્રદર્શની પણ આવેલી ખેલ मैदानમાંથી દરેક ખેલાડી ભાઈઓ તથા બહેનોને કાર્યાલય પર આવવા વિનંતી છે. સેવા મેળામાં શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, ગૌ સેવા, સ્વાવલંબન ના મંડપમાં ઇસરોની પ્રદર્શની છે. જેમાં શત્રુઘ્ન મંડપની મુલાકાત લેશો.
निःशुल्क स्वामी प्रसाद खेल मैदाનમાં રોજ સવારે ઓછી રમતો યોજાશે. રોજ રાત્રે આ ગીતા ગીતા પ્રેસ છે. યોજાય છે. સેવા, સ્વાસ્થ્ય, ગૌસેવા અને સ્વાવલંબન હિન્દુ આધ્યાત્મિક સેવા મેળામાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. શ્રી શત્રુઘ્ન મંડપમાં ચિત્રોની પ્રદર્શની આવેલી છે, જેમાં 8 મિનિટની મૂવીમાં બતાવવામાં આવે છે. તેમાં ચંદ્રયાન 3નું मैंने ये सब देखा है हमारे घरे आई जाओ ડાબી બાજુ ऑर्गेनिक વિષય શું છે બધું આગળ લઈ જવું एक्चुअली मैं यहाँ पे इनका इंटरव्यू ले रही थी. एक्चुअली यही है ऑनर यहाँ के. ओके आपका शुभ नाम मोहित गजरेकर मोहित मोहित गज्जर गज्जर मोहित भाई ये क्या है सद्भावना ये सद्भावना वृद्धाश्रम जो है दोस्तों सद्भावना का स्टोरी और यहाँ पर मोहित भाई बात करेंगे मोहित भाई નમસ્કાર સદભાવના પરિવારમાં આપનું સ્વાગત છે. સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ આપને એવું લાગે કે વૃદ્ધાશ્રમ હોય કે ન હોય, પણ વૃદ્ધાશ્રમના ઘણા બધા ક્રાઇટેરિયાઓ હોય છે. અમારા સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમનો મેઇન હેતુ એ છે કે જે લોકો નિરાધાર છે, નિસહાય છે, નિસંતાન છે, એ લોકો માટે નિઃશુલ્ક નિવાસસ્થાન એટલે આ સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ છે. સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ કોઈ વડીલો પાસેથી ને કોઈ જાતની પૈસા કે ફી લેતું નથી. માત્ર ડોનેશન ઉપર ચાલતી આ સંસ્થા છે. વૃદ્ધાશ્રમની અંદર અત્યારે હાલમાં 650 વડીલો આશ્રિત છે. 650 વડીલોમાંથી ને 200 વડીલો એવા છે કે જે સંપૂર્ણ પથારીવશ ડાયપર ઉપર છે, કે જેને નવરાવા, ખવડાવવા, એના ડાયપર બદલાવા બધું કામ અમારા માણસો કરતા હોય છે. કે સગા દીકરાને પણ ઘણીવાર એમ થાય કે હું ન કરું એવું કામ અમારા માણસો બધા કરતા હોય છે. એ રીતે વડીલોને સગા મા બાપની જેમ સાચવવામાં આવતા હોય છે. હા, સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમની સાથે સાથે બળદ આશ્રમ ચલાવે છે. ગૌશાળાઓ ઘણી બધી છે. બળદ આશ્રમ એટલે જેમ આપણે કહીએ ને કે ગાય આપણી માતા છે,
તો બળદ એટલે બાપનું શું એમ આપણે ઘણીવાર મજાકમાં કહેતા હોય કે તું તો સાવ નકામો થઈ ગયો, બળદિયા જેવો છો એમ. પણ એને એની જિંદગીમાં ખૂબ ગધાવેતરું જે કર્યું હોય, જ્યારે બળદ ખેતીમાં કામ કરતો હોય ત્યારે સારો લાગે. વૃદ્ધ થઈ જાય પછી એને રસ્તે રઝળતો મૂકી દે છે. તો અમે લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે અમારા બળદ આશ્રમમાં તમે એને પહોંચાડી દો, અમે એને આજીવન નિઃશુલ્ક સાચવશું. એ ઉપરાંત સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ શ્વાન આશ્રમ પણ ચલાવે છે. સ્ટ્રીટ ડોગ માટેનું શું કે રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થઈ જાય, એના હાડકા ભાંગી જાય, ડોગને પણ પેરેલાઇઝ થઈ જતું હોય છે, એના ઢીંઢા ભાંગી ગયા હોય છે. તો આવા બીમાર શ્વાન જે છે, સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ પાસે બળદ આશ્રમમાં 1600 બળદો અને શ્વાન આશ્રમની અંદર અત્યારે હાલમાં 125 ડોગ છે. સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ આની સાથે ગુજરાતની અંદર બધાના નજરમાં આંખમાં આવે એ પ્રમાણે વૃક્ષારોપણનું ખૂબ મોટા પાયે કામ કરે છે. જ્યાં જ્યાં તમે ગ્રીન કલરના પિંજરા નેટ મારેલા તમે જોશો, ત્યાં સદભાવના લખેલું તમને દેખાશે. વિજયભાઈ ડોબરિયા, હા, એ અમારા પ્રમુખ છે. અને સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમે આખા ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર 30 લાખથી પણ વધારે વૃક્ષો વાવીને ઉછેરીને મોટા કરી દીધા છે. અને હમણાં અમે રામકથાનું આયોજન કરેલું છે. હા 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 વાહ, સરસ. હા, સરસ. હા 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 એ એક પ્રોગ્રામની અંદર રૂપાલા સાહેબ બોલ્યા હતા, વિજયભાઈને ઉપમા આપેલી હતી ગ્રીન મેન. અને ખરેખર ગ્રીન મેન તરીકે હમણાં અમે લાસ્ટ નવેમ્બર-ડિસેમ્બરની અંદર મોરારી બાપુના સ્વમુખેથી રામકથાનું આયોજન કરેલું હતું. એમાં અમે મોરારી બાપુ સાથે સંકલ્પ લીધેલો છે કે આખા ગુજરાતની અંદર તો અમે વૃક્ષો વાવીએ છીએ, આખા ભારતની અંદર 150 કરોડથી પણ વધારે વૃક્ષો વાવવા છે. કારણ કે આપણી વસ્તી 140-145 કરોડની આખા ભારતની વસ્તી છે. તો દરેકના નામે એક વૃક્ષ વાવવું એ અમારો સંકલ્પ છે. તો આ રીતના અમે કામ કરીએ છીએ સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમમાં. આ સંસ્થા સંપૂર્ણ દાન ઉપર ચાલતી સંસ્થા છે. આમાં સરકાર પાસેથી અમે કોઈ ફંડ નથી લેતા, ટોટલી દાન ઉપર ચાલે છે. ઓકે. सेवा भारती के द्वारा ये प्रवृत्ति हो रही है, तो उसके लिए हम हाँ बात कर रहे हैं मिमी खालिया से, जो यहाँ सेवा भारती के स्कूल में इंचार्ज है। तो आप हमें बताएंगे कि ये क्या क्या प्रवृत्ति करता है सेवा भारती, और यहाँ पे क्या हेतु से हमने यहाँ स्कूल लगाया। सेवा भारती में जो हमारा सब जो काम होता है उसमें सामाजिक हमारा जो स्वावलंबन का काम होता है, सेवा भारती में जो हमारे सुपोषण का काम और हमारा जो पूर्व पीड़ित होते हैं वो सब मतलब जब आपदा आती है उसमें भी हम काम करते हैं। सेवा भारती में ये 4 प्रकार का काम होता है, स्वास्थ्य का, सामाजिक, शिक्षण और स्वावलंबन। तो उसका मेन इसका गुजरात का अहमदाबाद में है, बाकी पूरे भारत भर में सब जगह पे, जब दिल्ली है सब जगह पे ये सेवा भारती का सब जगह पे ऑफिस, हाँ, सब जगह अलग अलग प्रवृत्ति चलती है। कई प्रांतों में स्वावलंबन का ज्यादा है, कई प्रांतों में किशोर विकास का ज्यादा है। जैसी जरूरत वहीं को जो प्रांत को कैसे मतलब वहीं पे उनकी आवश्यकता है, उस पे जो हमारा ज्ञान मंदिर चलता है जो सेवा वस्ती में, तो इधर सब 50 या 100 केंद्र हमारा है जो ज्ञान मंदिर उसको बोलते हैं। वो सेवा वस्ती में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको हम 5वीं से उसको 10वीं तक हम लोग पढ़ाते हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं निमिषा जी, आपने हमारे दर्शकों को तो सेवा भारती के कार्य समझाया। धन्यवाद। नमस्कार। और यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपका नाम? शुभ्रकांत प्रधान। तो आप यहाँ पे क्या सेवा बचा रहे हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्ते। और आज इस हिंदू आध्यात्मिक मेला के अंदर हमारा जो संस्था है उन्होंने यहाँ पर अपना सेवा कार्य थोड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कुल पूरे सूरत में 4 आयाम चलते हैं, एक शिक्षण, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता।
उन चारों आयामों में हमारा सेवा कार्य सूरत ग्राम्य विस्तार और सूरत शहरी विस्तार दोनों में चलता है। सूरत शहर के अंदर शिक्षण आयाम के अंदर हमारा पाठदान केंद्र और बाल संस्कार केंद्र चलता है, जिसके अंदर हम लोग पाठदान केंद्र के अंदर 3 से लेकर 8 क्लास वालों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। और बाल संस्कार केंद्र के अंदर 8 उम्र से लेकर 14 वर्ष तक हम लोग जो बच्चों में संस्कार की सिंचन होती है, उनके अंदर वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य आयाम के अंदर हमारा तो नेत्र चिकित्सा शिविर होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, सर्वरोग निदान कैंप होता है और हेमोग्लोबिन कैंप होता है। हेमोग्लोबिन कैंप इसलिए करते हैं ताकि जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर ये ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हेमोग्लोबिन कैंप हम लोग ज्यादातर करते हैं। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं गरीब विस्तार की, वो अच्छे से अच्छे मेडिकल में ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, पर वो उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी संस्था जो है गरीब बस्तियों में जाकर निःशुल्क चेकअप और मेडिसिन उनको देती है और 3 मंथ तक उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेती है और उनसे जानकारियां लेती है, जिससे संस्था उनके साथ जुड़ सके और वो संस्था के साथ जुड़ सकें एज अ स्वास्थ्य आयाम के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आनंदी जीवन का मार्ग बताने वाली सनातन संस्था हमारे कार्य है सत्संगों द्वारा प्रायोगिक रूप से साधना सिखाना, बताना, शिक्षकों और कर्मचारियों को तनाव मुक्त रूपों में प्रदर्शन कहाँ पे है? अहमदाबाद में। सब हम सभी के घर घर जाके करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, जहाँ पे हमें बिना मूल्य मिलता है निःशुल्क। आप बोलो भी। तुम्हाला तुमचा नंबर दो। 16 हिंदी में बात करूं? नमस्कार। वहाँ पे अलग अलग लोक सेवा का कार्य किया जाता है और हम बात कर रहे हैं आपका नाम? पारुल मांडे। मांडे। तो पारुल जी, ये सनातन संस्था है, क्या काम है? सनातन संस्था आध्यात्म का प्रसार करती है, धर्म जागृति का प्रसार करती है, साथ में तनाव मुक्त जीवन के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए साधना सत्संग लेते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार मिले उसके लिए बाल संस्कार वर्ग लेती है, महिलाओं को धर्म शिक्षण वर्ग भी देते हैं और हम घर घर जाके प्रसार करते हैं। और नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में भी चलता है, बाहर के देशों में भी इसका कार्य बहुत गति से चल रहा है। मैं 12 साल से इस संस्था में जुड़ी हूँ। इस संस्था के लिए मैं करूँगी, हमेशा करती रहूंगी। सनातन संस्था के कार्य का एक विशेष आयाम है। सनातन संस्था द्वारा यह ट्रांसफर चलाया जाता है, जो लोगों को आनंदमय जीवन का मार्ग दिखाता है। भारतीय सिंधु सभा का ये स्टॉल है दोस्तों। जब 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान जब वो हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, प्रोटेस्ट किया सिंधियों ने, उन लोगों को कहाँ पे जगह है? पंजाबियों को पंजाब में जगह देंगे, पारसी है गुजरात तो गुजरात में आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, बट सिंधियों एक वही एक कम्युनिटी है जिसको कहाँ पे जगह नहीं मिली।
वो दर बदर ठोकर खाते खाते अभी भी जाके सब सेटल हो चुके हैं। हमारे वो उसमें वॉर में शहीद हो चुके थे हेमू कालानी, ही वॉज ओनली 19 ईयर ओल्ड। हमारे 8th सेंचुरी के सिर्फ एक ही राजा थे लास्ट में, जो राजा धैर्य सिंह। लास्ट तक उन्होंने मुगल से फाइट की, हमें जीत दिलाई। वो कहाँ के थे? सिंध देश के। आपका नाम? मेरा नाम लुहाना अक्षर। लुहाना अक्षर। रुहाना अक्षर। धन्यवाद। संत विजयदास जी सेवाश्रम ट्रस्ट ठाकुर का। वृद्धाश्रम, समूह मैरिज, अन्न क्षेत्र, गौशाला। डाकोर में है ये प्रॉपर? किनारे अंदर आ जाओ। लीडू हम संत विजयदास जी सेवाश्रम ट्रस्ट डाकोर धाम के उद्देदार से बात कर रहे हैं। आपका नाम? के जोशी। तो ये आपकी संस्था है, ये कहाँ है और क्या काम है? हमारी संस्था पुरानी है पर 7 साल से हमने नई बनाई है और ये 7 साल का हमारा प्रोजेक्ट है पूरा। हर साल हाँ संत सम्मेलन होता है और दीकरी का शादी होती है बच्चे की बिना माँ बाप के, और जो गौरी व्रत आता है उसमें हम बच्ची को दान पुण्य करता है। सबको गौरी में वृक्ष गौरी बना के देता है और हर पूनम को, हर पूर्णिमा को कोई भी यात्री को फ्री भोजन में देता है। आश्रम पे गौशाला बड़ी बनाई है, मंदिर के सामने है, गोमती किनारे पे पूरी। અમદાવાદમાં નવરંગપુરા આપણા માટે પુસ્તક લઈ જાઓ, વાંચજો, બીજાને પણ વંચાવજો ખાસ. નથી લખતા ગુરુદેવ શ્રી રાજચંદ્રનું વાક્ય છે કે જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞ તેટલું જ્ઞાનમાં કહી ન શક્યા તે પણ શ્રી ભગવાન જો એ પદને વિશે અન્ય વાણી તો શું કહે, અનુભવ વિશે માત્ર એ જ્ઞાન કોઈ શબ્દોમાં કે શાસ્ત્રોથી નથી. શાસ્ત્રોમાં માર્ગ કયો છે પણ મર્મ તો સત્પુરુષો પાસે જ રહે છે. તો અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે બધાએ આત્મસાક્ષાત્કાર કરે, બધાએ તત્વને પામે. એ અલગ અલગ ધર્મમાં એના અલગ અલગ કહ્યું છે. કોઈ એને બ્રહ્મ કહે છે, કોઈ ભગવાન કહે છે, કોઈ ઈશ્વર કહે છે, કોઈ મૂળ તત્વ કહે છે, પણ મૂળ સત્ય એક છે. એકમ સત વિપ્રા બહુધા વદંતી એવું છે. બધા એને પામે એવા પ્રયત્ન સાથે ઇમેજા હેઠળ કાર્ય કરે. तो ये आदर्श है गुरुदेव श्रीमद राजचंद्र स्वामी विवेकानंद, इन महापुरुषों ने जो आदर्श दिए हैं उस पे चल के सब अपने आत्मा का साक्षात्कार करें, इस एम्बिशन के साथ हम कार्य करते हैं। हमारे मेनली 2 सेंटर है, अहमदाबाद और आनंद में। अहमदाबाद में और आनंद दोनों जगह पे ध्यानखंड लाइब्रेरी है जहाँ पे नित्य सत्संग होता है। हमारे ट्रस्ट का जो हेतु है सद्वांचन, सद्विचार, सत्संग, सेवा से समाज की ओर उत्थान, इस उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं। जो आनंद में सेंटर है वहाँ पे विद्यार्थियों को निःशुल्क रहने की सुविधा दी जाती है। वहाँ पे उनके लिए 3 नियम बनाए गए। आपको नियमित वांचन करना है, नियमित आपको प्रार्थना करनी है और हर महीने एक सेवा प्रवृत्ति करनी है, जिसमें दिव्यांग है,
गौ माता की सेवा है, वृक्षारोपण है, ऐसे सब सेवा प्रवृत्ति में उनको भेजा जाता है ताकि उनमें वो संस्कार दृढ़ हो और आगे जाके वो दूसरों को भी ये संस्कार दे सके। जी, मेरा नाम चिराग भाई है, मैं संबोधि मिशन ट्रस्ट का स्वयं सेवक हूँ और इस संस्था के साथ नौकरियात, बिजनेसमैन, सदगृहस्थ सब जुड़े हुए हैं। हमारे जो जी हमारे जो मार्गदर्शक है, जी जी जी, जो मार्गदर्शक है हमारे चैतन्य संघानी, उनका सोहम टीवी और सच्चे सुख की ओर एक कार्यक्रम आता है जो भी नित्य सत्संग के माध्यम से दूसरों को उस मार्ग पे चलने का उसमें रास्ता बताते हैं। ऐसा बोला जाता है कि शास्त्रों में मार्ग दिया है पर जो मर्म है उसका वो सत्पुरुषों के पास है। जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलता तब तक आपको कितना भी ज्ञान हो जाए और उसका सर्टिफिकेट मिले बिना उसकी कोई कीमत नहीं है। तो दोस्तों, ये संबोधि मिशन है जो भारत के भविष्य का निर्माण कर रहा है। और हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। दोस्तों, हम खड़े हैं शक्ति प्रतिष्ठान ट्रस्ट और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के होद्देदार से कि आप यहाँ क्या उद्देश्य से आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम जो श्री शक्ति प्रतिष्ठान आराधना मंडल है, हमारा जो ट्रस्ट चल रहा है, वो ट्रस्ट के अंदर हम छात्रावास भी रखते हैं, सुवर्ण प्राशन कराते हैं, क्वांटम थेरापी, सिलाई मशीन, जो बाल संस्कार केंद्र चल रहा है, वही सब कुछ काम हो रहा है। यहाँ महिलाओं के लिए उत्थान की बातें करते हैं हम, बाल संस्कार केंद्र भी चलाते हैं और हम लोग सुवर्ण प्राशन की काम भी करते हैं। तो हमारे साथ पूरे कर्णावती की बात करने जाएंगे ना तो 40 शाखा चलती है, 40 शाखा चलती है। यहाँ के जो संचालिका है ये पूर्व आरती बेन हमारे जो आरती बेन है हमारे पूर्व विभाग के संचालिका है, उनसे बात कीजिए आप। ये आपकी जो शक्ति प्रतिष्ठान ट्रस्ट है वो क्या क्या सेवा करती है हमारे भारतवर्ष में, उसके लिए थोड़ा brief करिए। हमारी राष्ट्र सेविका समिति का उद्देश्य वही है कि बहनों का खुद का संरक्षण कैसे करें। तो वो संरक्षण तो बहनों को तैयार करते हैं ना, बहनों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक से तैयार करके उनको दंड है, नियुद्ध है, बराबर ऐसे शारीरिक अलग अलग, बौद्धिक का मतलब अलग अलग हमारी घंटे की शाखा होती है। सप्ताह में, ज्यादातर सप्ताह में लगती है, कई कई दैनिक भी शाखा होती है और मासिक भी शाखा होती है हमारी। तो बहनों को तैयार करते हैं। वहाँ पे हमारे लोगों को 1 घंटे का हमारा योग है, गमत है, श्लोक है, अमृत वचन है, बौद्धिक का अलग अलग चर्चा होती है, बोध वार्ता होती है। तो जैसे बहनों को हमारा धर्म, हमारी राष्ट्र, हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, तो उसके लिए बहनों को जागरूक करते हैं और बहनों को तैयार करते हैं। और हमारे राष्ट्र सेविका समिति का हमारा एक ट्रस्ट है, श्री शक्ति प्रतिष्ठान ट्रस्ट द्वारा हमारा अलग अलग हमारा सारा सेवा कार्य चलता है। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अखिल भारतीय રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ना ना वो આપણે નથી બોલતા, એવું નથી બોલતા। कामगिरी से अभी रूबरू कराते हैं आपको। तो आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम हेमाली कुंचल है और मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की कार्यकर्ता हूँ और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना सन 1974 में हुई थी और उसको आज 50 साल हो गए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये इंडिया का मैप है उसमें ऑरेंज जो मार्क्स है, इंडिया में इतने राज्यों में हमारी संस्था कार्यरत है और वो वाला मैप आप देख सकते हो, वो जो गुजरात राज्य का है उसमें जो ऑरेंज मार्क है उतने जो राज्य है उसमें कार्यरत हैं। और हम ग्राहकों के जो शिक्षण, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और जो ग्राहकों के लक्ष्य जो भी समस्याएं रहती हैं उसका कैसे बिना मूल्य हम उनके निवारण करने का मार्गदर्शन देते हैं। थैंक यू सो मच। कंपनी के द्वारा इसका निवारण नहीं होता है, उसकी कंप्लेंट जी मार्गदर्शन है उनके लिए बहुत अच्छा
और हम अवेयरनेस के कार्यक्रम हाँ हमारे व्यूअर्स कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और आप कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहती थी कि ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है और वेबसाइट है जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो और खूब खूब धन्यवाद। निःशुल्क होता है। निःशुल्क निःशुल्क यस। समन्वय से सब कामकाज होता है। तो आप क्या डायरेक्ट कंपनी से डील करते हो कि आपका वकील के थ्रू? नहीं, हम सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। लड़ना कंज्यूमर को खुद को ही होता है। हम सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं कि वो कहाँ पे क्या कर सकते हैं। यस, हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं। विद्या भारती फाउंडेशन। हेलो सर, ये विद्या भारती फाउंडेशन क्या काम करता है? विद्या भारती फाउंडेशन 2005 से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है। तो ये स्कूल बेस्ड प्रोग्राम के अंदर हम अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट की 37 जितनी गवर्नमेंट स्कूलों में काम करते हैं। हमारा लर्निंग एनरिचमेंट करके प्रोग्राम है। उसके अंदर गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी ऐसे 30-40% बच्चे ऐसे होते हैं जो 8वीं कक्षा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको लिखना पढ़ना गिनना भी नहीं आता है। तो अल्टीमेटली आगे जाके वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट होने का चांसेस रहते हैं। तो उसको हम स्कूलों में जाके हम फुल टाइम हमारे टीचर अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? अब गवर्नमेंट रूरल की प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पर जाके काम करते हैं। अच्छा, छोटे छोटे गाँव में। और उस बच्चे को लर्निंग लेवल हम प्री टेस्ट लेके पता करते हैं। उसके साथ हमारे गेम्स के साथ एक्टिविटी बेस्ड हम पूरा प्रोग्राम होता है। वो बच्चे को स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट 2005 से हुआ, 19 ईयर्स हुआ है, 20 ईयर्स का है। उनके होद्देदार हो? हाँ, मैं उसका फाउंडर हूँ। मैं फाउंडर। और एक्स्ट्रा कुछ आप देना चाहते हो कि जो आपकी संस्था की बहुत अच्छी कामगिरी है इसके लिए? मतलब हमारे सेंटर में बच्चे हैं, तो हम माइग्रेंट बच्चे जो है, जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जिसके माँ बाप काम करे, लेबर जो है, उसके बच्चों के लिए बड़ी बड़ी साइट जो है, तो वहाँ पर भी हम साइट स्कूल ओपन करते हैं। वहाँ पर उस बच्चे को हजारिया साइट पे बच्चे ना जाए। टेंट टैग होती है कि आपको जगह प्रोवाइड मिलती है? नहीं, हम हमारे जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर जो बिल्डर है, उन लोग हमें सपोर्ट करते हैं उसकी, या कोई ऐसी कम्युनिटी है कि जहाँ पर पूरी बस्ती देखना रहती है। चाहेंगे कहीं अभी कभी हमको मिलेगा देखने के बिल्डर के कंस्ट्रक्शन एरिया में हाँ कभी मिल जाएगा? हाँ, चौक्कस। अभी हम ऑलरेडी वर्क कर ही रहे हैं, तो आप विजिट करिए, प्लीज डू विजिट। और साणंद ब्लॉक में एक गाला बिल्डर जो है, उसकी साइट पे है, ली परक्यू करके। उस साइट पे हमने 2 साल से ये बच्चों को बढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे आते हैं? 35 बच्चे आ रहे हैं। और इवन जब अहमदाबाद का रिवर फ्रंट बना, तब उस टाइम हम जेएमसी प्रोजेक्ट करके कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की, उसके साथ मिलकर हम 2008 से 2011 तक हमने सुभाष ब्रिज के नीचे हमारी साइट स्कूल चलती थी। तो उस टाइम भी जो माइग्रेंट लेबर के बच्चे कम पढ़ाते थे, और ऐसे स्लम के बच्चों को भी लिए हम, हमारा सेंटर है। और एक नया प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारा नया प्रोजेक्ट हुआ है, तो एक रीडिंग को लिए है, वाचन विमर्श करके। कि आजकल जो वाचन से अभिमुख नहीं है, और उसका वजह यह है कि कहीं ना कहीं हम उसके पेरेंट्स जो है ना, उसके पास मोबाइल है या टीवी का रिमोट है। तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा आधा घंटा हमारे प्रोग्राम से जुड़ेंगे। ये फ्री ऑफ चार्ज है, सभी एज ग्रुप के लिए ओपन है। तो ये रीडिंग मैराथन है। ये ऐसा है कि वर्चुअल है। आप हमारे साथ जो, हाँ, हमारे साथ मतलब ये 1 साल की रीडिंग मैराथन है। तो हर महीने एक बुक पढ़नी है, और मंथ एंड में उसका रिव्यू का सेशन होता है, डिस्कशन होता है। और हर एक को जो 10-12 ग्रुप के मेंबर्स जो है, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, तीनों लैंग्वेज के अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से ग्रुप है हमारा। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए है, सभी के लिए। अल्टीमेटली हमारे सेंटर में बच्चे के बड़े पढ़ेंगे, तब घर में अंदर एनवायरनमेंट बनेगा, और बच्चे भी वो देखेंगे मेरी मम्मी पढ़ रही, मेरा पापा पढ़ रहा है, और उसकी डिस्कशन भी होगी। तो बच्चे भी बुक पढ़ेंगे, देखेंगे, चलो कवर पेज देखेगा, उसके अंदर कुछ पढ़ेगा। धीरे धीरे करके उसके माइंड में जो है ना, ये चीज आएगी, तो एक हैबिट बनेगी। धन्यवाद।
हवेली क्या है तू लेके आए हो? हमारा मंदिर है इसमें सब एक प्रवृत्ति चलती है। कहाँ पे है मंदिर? अल्फा मॉल देखा आपने? हाँ, इसके सामने ही हवेली है। यहाँ पे प्रवृत्ति चल रही हाँ, है। ये सब- क्या ये सब- क्या प्रवृत्ति है? ये सब लिखा है। तो गरीबों को खिचड़ी हर संडे गरीब को खिचड़ी सब सब्जी देते हैं, वहाँ जाके बाहर लेके टेम्पो में लेके जाते खिचड़ी। ये मीनादार लोग होते हैं उसको सब किट देते हैं, एक महीने का पूरा खाने पीने का सामान, दाल चोखा, फिर साकर, चाय, तेल। तो वो लोग आपको कांटेक्ट कैसे करें? फॉर्म भरते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे, लेकिन अब वहाँ भी भरते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे फॉर्म भरते हैं। तो वो वैष्णवी होने चाहिए कि समाज के कोई तो भी? परमान हाँ ये परमान उसको भी देने ऐसा नहीं है, कोई जाति जाति नहीं है। तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से आता है? फंडिंग ये सब डोनेशन देते हैं। अभी देखो कल हमने इतना दिया, इधर डोनेशन देते तो क्या पूरा देंगे। अच्छा, लोग डोनेशन देते हैं। कल हमने एक 700 रुपए के किट है, ये 5 किलो उसमें दिए, बराबर। ये दूसरा दिया, ये तीसरा, ये सब डोनेशन देते हैं। डोनेशन और जो भी कम पड़े वो हवेली में से हवेली में भी से लोग दान धर्म करते हैं। आपका नाम? गोविंद भाई गोविंद भाई, जैन साहब। थैंक यू सर। आपका नाम? पंकज राजकोटिया। पंकज एन राजकोटिया। धन्यवाद।